Hello everyone. In today's video, I'm going to talk about how I cleared JRF in my very first attempt, and I'll also share my strategy with you all as to how I approach this exam. So before we start, I'll give you a brief introduction about myself. So मेरा नाम मुस्कान लांबा है, and मैं currently एक PhD scholar हूँ. Okay. So I cleared this exam in my very first attempt. That was in December 2023. Okay, December 2023 का पेपर मैंने दिया था and in that very exam I had cleared JRF. Okay, so उस समय जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो गई थी अराउंड 180 मार्क्स. ओके, अराउंड 180 मार्क्स जनरल कैटेगरी में JRF की कट ऑफ थी एंड कट ऑफ सुन के ही आपको ऑलरेडी लग रहा होगा कि इतनी कम कट ऑफ गई है, इतनी लो JRF की. So that actually gives you an indication कि December 2023 का एग्जाम was a very tough exam and that is why जो कट ऑफ थी आपकी वो इतनी कम गई, right? So if you are a candidate of economics आपको already पता होगा कि December 2023 का एग्जाम में काफी डिस्कशन में भी रहा था. It was a very tough exam. Comparatively, I'm talking comparatively because अगर आपने PYQs किए हुए हैं, so you do a comparison December 2023 के पहले के papers and you check out December 2023 after that, you will see a huge difference. So December 2023 ka paper, it was slightly on a tougher side, right? So that's why the cutoff was 180 that year, and that year I had scored 196. So it was comfortably above the cutoff, 16 marks above the cutoff, and that's how I got my JRF. And in this particular video, I'm going to talk to you in detail about my entire approach, the entire strategy that I adopted in this particular exam. And I sincerely hope कि इससे आपको भी आपकी preparation में help मिले. Okay, so let's get started. When we talk about this particular exam, I personally feel कि इसमें दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा important है, very very important. Firstly is right strategy. Strategy आपकी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, so firstly it's right strategy and secondly right mindset. Right mindset से इस एग्जाम को अप्रोच करना इक्वली इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ दीज एस्पेक्ट्स. दोनों एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे इन डिटेल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन. वील टॉक अबाउट द राइट स्ट्रैटेजी फर्स्ट. ठीक है, जब स्ट्रैटेजी की बात आती है तो उसमें जो सबसे पहली चीज है वो है सिलेबस. ठीक है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, बी इट योर पेपर 1 और योर पेपर 2. both the papers you need to know your syllabus very well, right? And before starting the preparation it's also very important कि आपको एग्जाम समझ आना चाहिए कि ये एग्जाम है क्या. ओके, यूजीसी नेट का एग्जाम किस लिए होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटायर प्रोसेस. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इस एग्जाम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप. First step before you start your preparation, that is to know the pattern of your exam. Okay, and syllabus भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सिलेबस आपको डाउनलोड करना है नेट की वेबसाइट से, यूजीसी नेट की वेबसाइट से, एंड आइडियली हार्ड कॉपी में उस सिलेबस को आप अपने पास रखोगे. Okay, you have to keep that syllabus with yourself. That is important because from time to time while you are preparing for this exam, you have to go back to your syllabus and keep checking each and everything, each and every term in your syllabus. आपको वो thoroughly क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि सिलेबस में इस पर्टिकुलर पेपर में क्या क्या कवर हो रहा है. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यू हैव टू कीप गोइंग बैक टू इट टू चेक एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस, whether you are covering those things and whether you are not missing out on something which is important, right? So इन चीजों का ट्रैक रखने के लिए सिलेबस आपके पास होना चाहिए and that is ideally the first step to understand your syllabus extremely well. ठीक है, फर्स्ट थिंग सिलेबस हो गई. अब दूसरी चीज विद इन द सिलेबस इज दैट कि अब जैसे आप यूजीसी नेट का जब when you go through the pattern and you understand how the weightage and everything is divided marks की, you would know कि पेपर 2 की वेटेज ज्यादा होती है when compared to your पेपर 1, राइट? अब काफी एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करते हैं एंड दे निग्लेक्ट पेपर 1.
राइट. ऑब्वियसली पेपर 2 पे आपको फोकस करना है, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है. 200 मार्क्स आउट ऑफ 300. यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल लीव योर पेपर 1 और यू वोंट प्रिपेयर इनफ फॉर दैट पेपर. Trust me, I'm telling you, I know those candidates. I have had students जिनका पेपर 2 बहुत अच्छा हुआ, but still they could not clear this exam. And the reason, what was the reason? पेपर 1 में उनका मतलब पेपर 1 they did not do at all. They did not prepare it or they did not fare well in that. और उसकी वजह से even though उनके पेपर 2 में मार्क्स बहुत अच्छे थे, पेपर 1 उनका क्योंकि अच्छा नहीं हुआ, they could not clear the cut off. एंड बेसिकली वो पूरा अटेम्प्ट उनका इतना अच्छा पेपर करने के बाद भी नहीं हो पाया. राइट. सो पेपर 1 इज इक्वली इंपॉर्टेंट. इट कैन हेल्प यू क्रिएट एन एज. पेपर 2 आपका अच्छा हुआ है, बट जो आपको फाइनल उस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए जो एक एज चाहिए वो पेपर 1 क्रिएट कर सकता है. राइट. सो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को आपको साइमल्टेनियसली लेकर चलना है. यू आर नॉट गोइंग टू नेग्लेक्ट आइदर ऑफ देम. यू हैव टू पे इक्वल अटेंशन टू बोथ द पेपर्स. राइट. पेपर 1 को नहीं छोड़ना है. यू आर गोइंग टू कवर दैट एज वेल. ओके. सो ये आपकी पहली चीज हो गई, विच इज सिलेबस को अच्छे से आपको कवर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, एंड यू हैव टू नो इट बिफोर हैंड, बिफोर योर प्रिपरेशन एक्चुअली बिगिंस. सिलेबस को अच्छे से जानना है. ठीक है. अब सेकेंड चीज जो है दैट इज PYQs, and this is something that I've said many times already and I'll say this again. PYQs are non-negotiable. PYQs करना is extremely important. ठीक है. एंड मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, एंड दैट्स समथिंग दैट आई ऑल्सो डिड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, कि PYQs इवन बिफोर माई प्रिपरेशन, मतलब अपने सिलेबस को प्रिपेयर करने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने अपने PYQs को थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था. आई मीन 2-3 पेपर ऑलरेडी जो PYQs के थे वो मैं ऊपर ऊपर से देख चुकी थी इवन बिफोर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. Why did I did that? It was because I wanted to know कि पेपर में क्वेश्चंस पूछे किस तरीके से जाते हैं. ठीक है. पैटर्न तो मुझे पता है कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड इतने क्वेश्चंस आएंगे, वो सब बेसिक चीजें मुझे पता है. बट मेरे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, राइट. सिलेबस के इस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे उनको क्लियर करने के लिए व्हाट आई डिड वाज दैट इवन बिफोर आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, मैंने पहले ही PYQs जो थे कुछ कुछ थोड़े बहुत अपने देखने शुरू कर दिए थे, जस्ट टू नो कि किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो इवन इफ आपको क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ऑब्वियसली कि आपने भी प्रिपरेशन प्रॉपर्ली की नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किया अच्छे से, तो इट्स वेरी नॉर्मल कि अगर आप कोई क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. आई वाज आल्सो रेडी फॉर दैट कि यार नहीं भी आएगा तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अभी देख ही इसलिए रही हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न जानना है कि यूजीसी नेट क्वेश्चंस पूछता कैसे है. दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट बाय गोइंग थ्रू द PYQs एट दिस स्टेज, इनिशियल स्टेज. ठीक है. सो दैट इज समथिंग दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू अडॉप्ट. राइट. बिगनिंग में हल्का सा ब्रश अप कर लो कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. राइट. और इसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो. गो थ्रू योर सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है, योर मेन टेक्स्ट बुक्स, गो थ्रू देम एंड देन साथ साथ भी दैट्स समथिंग दैट आई अडॉप्टेड कि इवन आफ्टर आई हैड स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, पूरी कंप्लीट नहीं भी हुई, बीच बीच में मैं फिर भी थोड़ा बहुत PYQs हल्का हल्का देखती रहती हूँ. जब भी मुझे बीच में लगता था कि मेरी 1 यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो गई, मतलब मैं ऐसे बना लेती थी कि उसके बाद मैं एक PYQ फिर और देख लूंगी, जस्ट टू सी कि मेरा वो जो माइंडसेट है वो ना चेंज हो जाए, वो डाइवर्ट ना हो जाए. बिकॉज PYQs में जिस पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उसी पैटर्न में अपनी प्रिपरेशन को करना चाहती थी, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. PYQs जब आप कर लेते हो उसके बाद अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका माइंड जो है हर चीज को उसी तरीके से प्रोसेस करता है. राइट. मतलब जैसे कि सपोज आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, राइट, कोई यूनिट आप कर रहे हो, कोई टॉपिक आपने उसमें पढ़ा एंड आपने PYQ में भी उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन देखा था, लेट्स से. ठीक है. कोई आपने क्वेश्चन देखा एंड नाउ यू आर रीडिंग दैट टॉपिक, तो आपको इमीडिएटली उसी समय स्ट्राइक करता है कि ये क्वेश्चन PYQ में आया था एंड इस तरीके से पूछा गया था. राइट.
तो वो वाली चीज आप उस चीज को एनालाइज कर पाते हो कि इस टॉपिक से यूजीसी नेट ने कैसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मतलब यूजीसी का पैटर्न ये है। तो अगर आगे में भी मैं अपना कोई टॉपिक प्रिपेयर करती हूँ तो मेरा माइंड उसी तरीके से काम करता है, मैं उसी तरीके से चीजों को एनालाइज करने लगती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है, इस तरीके से पूछता है, तो मे बी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो मेरा जो माइंडसेट है वो उस तरीके से डिवेलप हो जाता है कि मैं उसी एग्जाम ओरिएंट, इसको कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंटेंट तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, कोई कमी ही नहीं है उसकी, बट उसको एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना, दैट्स द एक्चुअल ट्रिक, राइट। वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आई पर्सनली फील कि उसमें पीवाईक्यूज हमें बहुत हेल्प करते हैं। सो पीवाईक्यूज को आपको साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। अगर आप कर सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको ट्राई करो, ठीक है, कि आप जैसे बिगिनिंग में हल्का सा देख लो जस्ट टू नो, एंड बीच बीच में अगर आपके पास टाइम होता है, अगर आप कर सकते हो उसको मैनेज, तो हल्का फुल्का देखते रहो, एंड देन जब आपका पूरा सिलेबस हो गया है उसके बाद तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पीवाईक्यूज जितने ज्यादा करो उतना अच्छा है, राइट। सो मैंने अपने केस में नियरली 10 इयर्स के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे। आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने ऑलमोस्ट 10 इयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए थे वो मैंने सॉल्व किए थे, एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट, दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज उसकी वजह से मुझे पूरा यूजीसी नेट का जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्लियर हो गया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड मैं अपने पूरे प्रेपरेशन को, पूरे एग्जाम को उसी तरीके से फिर अप्रोच करने लग गई, ठीक है। सो पीवाईक्यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसको आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है, अपनी प्रेपरेशन करोगे, एंड उसके बाद मेक श्योर दैट यू हैव इनफ टाइम टू डू एज मेनी पीवाईक्यूज एज यू कैन, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। अब तीसरी चीज जो है वो है नोट्स, ठीक है। अब आप जब अपना प्रेपरेशन कर रहे हो, यू हैव सम स्टैंडर्ड बुक्स, आपने जब आपने मास्टर्स किया था अपना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपकी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, यू हैव सर्टेन रीडिंग्स, राइट। तो उन रीडिंग्स को आप फॉलो करते हो, दोज आर योर स्टैंडर्ड बुक्स, बट मेक श्योर कि आप जब उन रीडिंग्स को, उन बुक्स को पढ़ रहे हो तो साथ साथ आप अपने खुद के नोट्स भी बनाओ, ठीक है। क्योंकि आप देखो ये एग्जाम में दिस सिलेबस इज ह्यूज, पूरा आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा आपको कवर करना है। अब हर सब्जेक्ट की यू हैव डिफरेंट बुक्स, हर एक की अलग अलग बुक है, तो राइट बिफोर द एग्जाम इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतनी मोटी मोटी बुक्स एंड में फिर उठा के बैठ गए, इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू डू दैट, ठीक है, इट्स अ बिग मिस्टेक इफ यू आर डूइंग इट इन फैक्ट। तो इसीलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप जब अपनी प्रेपरेशन कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज पे ही जब आप अपनी बुक्स पढ़ते हो तो आप साथ साथ अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड नोट्स आइडियली मैं यही बोलूंगी कि आपके आपके खुद के हो, राइट, अदरवाइज आप मार्केट से या कहीं और से ऑनलाइन सोर्स से भी यू कैन गेट नोट्स अदरवाइज, but my specific advice to you all would be that make your own notes, and ideally try to make them handwritten. Otherwise if you're comfortable, go with the online notes, अगर आप online notes में comfortable हो, but I personally feel कि जो handwritten notes होते हैं, आपके खुद के handwritten notes, they are very very helpful. I personally did that. मैंने अपने खुद के notes बनाए थे, खुद के हाथ से, अपने खुद के हाथ से लिख के मैंने नोट्स बनाए थे। इसका रीजन ये है कि जब आप खुद उस चीज को लिखते हो, खुद आप उस चीज को करते हो, तो आपकी वो माइंड में रजिस्टर होता है, राइट। आपकी जो रिटेंशन एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एंड मोर ओवर आप जब नोट्स बना रहे हो आप अपने हिसाब से बनाते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में बनाते हो, तो जब आप उसको फिर से रीड करते हो तो आपके लिए उस चीज को रिटेन करना, उसको समझना बहुत इजी हो जाता है। अब बुक्स में जो होता है वो तो बुकिश लैंग्वेज होती है, ठीक है, समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इट, राइट। लेकिन एक बार जब आपने उस चीज को समझ लिया है तो उस चीज को आप अपने ओन वर्ड्स में अपने नोट्स में लिख कर रख दो, राइट। एंड दैट्स आल्सो अनदर रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि आप किसी और के नोट्स ना लो, क्योंकि कोई और जो है वो अपने हिसाब से नोट्स बना रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना रहा है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वही आपकी होगी, राइट। सो इसीलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी एबिलिटीज के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स बनाओगे,
ठीक है। एंड नोट शुड आइडियली बी वेरी क्रिस्प। क्रिस्प मतलब बहुत शॉर्ट नोट्स, ऐसे नहीं कि आप पूरी पूरी बुक को ही छाप दो अपने नोट्स में, ठीक है, फिर उस नोट का कोई मतलब ही नहीं रहा, राइट, कोई मतलब ही नहीं रहा नोट्स को बनाने का, फिर तो बुक ही उठा लेते इससे अच्छा, राइट। तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझो, बुक से अंडरस्टैंड कर लो, एंड दैट्स व्हाई आल्सो पीवाईक्यूज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीवाईक्यूज को देख के आपको ये भी समझ आता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज ये क्वेश्चन भी माइंड में काफी स्टूडेंट्स के होता है कि हाउ डू आई गेट टू नो कि क्या चीज इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है, मैं अपने नोट्स में लिखूं क्या, राइट। पहला तो आपको जब आप पढ़ोगे उसको पढ़ने के बाद ही समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, अगर अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, ठीक है। दूसरा, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के थ्रू, पीवाईक्यूज जब आप बहुत सारे मल्टीपल ईयर्स के पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को मुझे अपने नोट में एंटर करना है, रजिस्टर करना है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनको आपको सबको चीजों को देखते हुए अपने नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, राइट। और अगर आप नोट्स अच्छे से बना रहे हो, एंड दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू डू दैट, बट अगर आप अच्छे से अपने नोट्स बना रहे हो तो आपको इस चीज में, इस प्रोसेस में टाइम भी लग सकता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर टाइम लग रहा है या टाइम अगर आपको लगता है लगेगा, उसकी वजह से आप इस चीज को छोड़ दो या कोई शॉर्टकट को अडॉप्ट करो, दैट्स नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, राइट। क्योंकि अगर आप अगर अभी इनिशियल स्टेज पे उस टाइम को बचाओगे तो एंड में आपको वो टाइम लग जाएगा। इनफैक्ट आपको ये सोचना है कि अगर आपके नोट्स एक बार थोड़ा टाइम लगा के आपने अच्छे नोट्स बना लिए, तो आप सोचो एंड में, राइट बिफोर द एग्जाम, जब आप थोड़े पैनिक की सिचुएशन में होते हो एंड देयर इज सो मच वर्क टू डू बिकॉज द एग्जाम इज सो क्लोज, उस समय आपके लिए टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है। अगर उस समय आपके पास शॉर्ट क्रिस्प नोट्स अवेलेबल हो तो आपके लिए सोचो कितना इजी हो जाएगा इस पूरे एग्जाम को क्लियर करना, राइट, इस प्रिपरेशन को पूरा करना, राइट। सो इसीलिए अपने नोट्स को बिगिनिंग में ही प्रिपेयर कर लो आप, ठीक है। गो थ्रू द प्रीवाइक्यूज, गेट एन आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स आर टू बी प्रिपेयर, prepared, and how you're going to organize the entire thing, and notes को आपने बहुत ही short रखना है। short doesn't mean कि आप important चीजों को मिस कर दोगे, short means कि आप उसको अपनी ओन लैंग्वेज में, मतलब जो चीज थी उसको अपनी ओन लैंग्वेज में ऐसे लिखोगे कि इवन इफ दैट थिंग इज वेरी लेंथी एंड बल्कि, आपने उसको प्रेजेंट इस तरीके से करना है कि कुछ वर्ड्स में ही आपको पूरी चीज समझ आ जाएगी, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो कर ही चुके हो, थोड़े से वर्ड्स पढ़ के ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि उस चीज में था क्या, राइट। सो अगर आपने मास्टर्स की भी प्रिपरेशन अपनी अच्छे से की है, मास्टर्स का जो आपका कोर्स का सिलेबस था वो अच्छे से किया है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको वहीं से मिल जाती है। ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू पुट इट इनटू स्मॉल इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज तरीके में उसको ला के रखना है, जिससे कि आप उसको रिवाइज कर सको, ठीक है। और एक चीज और, नोट्स को कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक नोट एक जगह है, दूसरा नोट दूसरी जगह है, एंड एंड में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको कुछ याद ही नहीं है, एंड यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सी चीज कहाँ लिखी थी। दैट इज नॉट द राइट थिंग। यू हैव टू कंसोलिडेट योर नोट्स, मीन्स नोट्स हैव टू बी इन वन प्लेस, राइट, जिससे कि आपके लिए एंड में डिफिकल्टी ना हो चीजों को ढूंढने में। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बुक्स में ही स्टिक नोट्स चिपका देते हैं, राइट। मतलब आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं उनमें ही शॉर्ट शॉर्ट चीजों के नोट्स बना के वो स्टिक नोट्स लगा देते हैं। पर्सनली आई फील दैट रियली डजंट हेल्प मच। रीजन बीइंग कि आप एंड मोमेंट पे फिर से ही वो सारी बुक्स उठा के बैठ रहे हो, एक तरीके से सारी बुक्स आपको खोलनी ही पड़ रही है उन स्टिक नोट्स को भी देखने के लिए। तो मेरे हिसाब से दैट डजंट सर्व मच ऑफ अ पर्पस, क्योंकि आप एंड में बुक्स तो खोल ही रहे हो सारी की सारी। अगर आपके खुद के नोट्स हैं, कंसोलिडेटेड नोट्स हैं, तो आपके लिए सिर्फ एंड में उन्हीं नोट्स को उठाना है। आपको मेंटली आप बहुत रिलैक्स्ड होगे, आपको मेंटली लोड नहीं लगेगा वो मुझे 10 बुक्स पढ़नी है, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। मतलब आप साइकोलॉजी भी देखो अपने आप की, जितना ज्यादा आपके माइंड को लगेगा मुझे काम करना है, वो उतना डरेगा उस चीज से, राइट। लेकिन अगर माइंड को पता है मुझे इतने से नोट्स ही बस पढ़ने हैं, इसी नोट में मेरा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अपने आप आपका माइंड जो है रिलैक्स होके आराम से कामली उस चीज को हैंडल करेगा, राइट। सो नोट्स को आपको खुद बनाना है और कंसोलिडेट करके एक ही जगह पे क्रिस्प तरीके से रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड एस्पेक्ट विच इज अबाउट योर नोट मेकिंग।
ठीक है। अब फोर्थ एस्पेक्ट है विच इज रिविजन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, कि अब आपने जब नोट्स बना लिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रिपरेशन आपने कर ली है हर चीज की, पीवाईक्यूज भी आप कर रहे हो, अब उस चीज को, उस नोट्स को रिवाइज करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो इवन इफ आपने अच्छे से उस चीज को पढ़ लिया है, आपकी मेमोरी से वो चीजें फेड होने लगती हैं, राइट। तो इसीलिए जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता, उस चीज को बार बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू टू मेक क्रिस्प नोट्स, जिससे कि आपकी रिविजन इजी हो जाए। नोट्स आपके जितने ज्यादा शॉर्ट, क्रिस्प, कंसोलिडेटेड होंगे, उतना कम टाइम आपको लगेगा उनको रिवाइज करने में, राइट। जितना कम टाइम रिवाइज करने में लगेगा, उतनी ज्यादा हाई आपकी फ्रीक्वेंसी होगी रिविजन की। जितना जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे, ऑब्वियसली उतनी बार आप रिवीजन पॉसिबल हो पाएगी, बिकॉज टाइम कम लग रहा है एक ही रिवीजन में, राइट। तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और माइंड पे लोड भी कम पड़ेगा आपके, बिकॉज यू नो दैट द नोट्स आर वेरी क्रिस्प एंड स्मॉल, राइट। तो रिविजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो एट द एंड, once you have prepared, done your entire preparation, it's very important कि आप रिविजन और पीवाईक्यू सॉल्विंग प्लस मॉक टेस्ट, इन तीन चीजों को आप क्लब करो, ठीक है। एंड की आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड योर प्रिपरेशन, यू गो थ्रू द पीवाईक्यूज, यू डू मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिविजन एंड यू सॉल्व मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम कमिंग टू नेक्स्ट। फिफ्थ पार्ट इज सॉल्विंग मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट सॉल्व करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मॉक टेस्ट के थ्रू आपको पता चलता है आपने टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम में, राइट। अब आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी होगी, यू माइट बी थरो विद एवरीथिंग इन योर सिलेबस, बट अगर आप एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो, देन ऑल्सो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू सर्व पर्पस, राइट। इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के थ्रू आपको अपनी, एक तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज भी कर पाते हो, यू गेट टू नो कि कौन से आपके वीक एरियाज रह रहे हैं। आफ्टर द मॉक टेस्ट आपको पूरा एनालिसिस होता है, यू गिव टाइम टू एनालाइज योर पेपर, आपने अटेम्प्ट कैसे किया, उससे आप अपने वीक पॉइंट्स निकालते हो, एंड वीक पॉइंट्स टेल यू किन एरियाज पे आपको फर्दर फोकस करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टाइम मैनेजमेंट आपको समझ आता है, बिकॉज जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, यू आर डूइंग दैट इन अ डिसिप्लिन मैनर, राइट। डिसिप्लिन तरीके से आप देते हो कि आपके 150 क्वेश्चन है एंड आप 3 घंटे में, 3 आवर्स के टाइम में उनको कंप्लीट कर रहे हो। तो उस जब टाइम कंस्ट्रेंट में आप चीज को करते हो, तब आपको समझ आता है हाउ वेल यू आर मैनेजिंग योर टाइम, राइट। क्योंकि आपका जो माइंडसेट है, दैट वर्क्स वेरी डिफरेंटली जब आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में ऑपरेट करते हो, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में मिस्टेक्स क्रिएट करने के, मिस्टेक्स कमिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन चीजों के लिए माइंडफुली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, ठीक है। इस चीज पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप एग्जाम में अवॉइड नहीं कर पाते हो, अनकंट्रोलेबल थिंग्स होती हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन चीजों के लिए आप पहले से ही अवेयर रहो, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दोज थिंग्स, राइट। तो उस चीज के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, सो दैट यू नो ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ इवन बिफोर यू एंटर फॉर योर एग्जाम। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले वो चीजें अगर आपके माइंड में क्लियर हैं, आप उन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड हो, तो आपके चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स कम हो जाते हैं। सो इफ यू रियली वांट टू मेक एवरी मोमेंट काउंट, go and check that video before you appear for this exam, right? Go check that out, and mock test dena therefore becomes very very important, right? So I'll tell you about my case. मैंने जब ये एग्जाम दिसंबर 2023 में जब दिया था, I started my preparation in September. So मैंने सितंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट बिकॉज आई वॉज वेरी थरो विद माई MA का सिलेबस जो था, सो मेरे लिए बस ये था कि बस मुझे अब अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मतलब जो टॉपिक्स थे सिलेबस में वो मुझे काफी क्लियर थे, बस मुझे कंसोलिडेटेड नोट्स क्रिएट करने थे। बट दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज अगर अच्छे नोट्स बनाने हैं दैट इज गोइंग टू टेक टाइम।
मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने लगे थे नोट्स को बनाने में, बट माई नोट्स वर एक्सट्रीमली क्रिस्प। मतलब अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो सिर्फ 7-8 पेजेस थे, पतले से नोट्स, बिल्कुल 7 to 8 पेजेस में द इंटायर सिलेबस आई हैड कवर्ड पेपर 1 का। एंड व्हेन इट कम्स टू पेपर 2, उसके भी मेरे अराउंड इतने इतने पेजेस में पूरे नोट्स पूरे पेपर 2 के कवर हो गए थे। सो दैट्स व्हाट आई डिड। मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने, नियरली 2 मंथ्स मुझे लगे थे। कंसिस्टेंटली आई हैड वर्क एंड एक एक टॉपिक को मैंने अपने पूरे नोट्स में कवर कर दिया था। वेरी क्रिस्प एंड कंसोलिडेटेड नोट्स आई हैड मेड एंड दैट एक्चुअली पेड ऑफ। एंड में उस नोट्स ने मेरी इतनी हेल्प की है, बिकॉज दैट दोज वर द नोट्स जिनको मैं बार बार रिवाइज करती थी। एंड आई यूज टू सॉल्व माई PYQs। एंड कहीं से भी और कुछ मुझे मिलता था जो मुझे लगता था मेरे नोट्स में है नहीं एंड इट्स इम्पोर्टेंट, तो उसमें मैं वहां पे ही एक स्टिक नोट उस अपने नोट्स पर ही लगा देती थी, सो दैट जस्ट बिफोर द एग्जाम वो फिर से मेरे पास एक कंसोलिडेटेड नोट बन जाए, एक रिविजन के लिए एक मटेरियल रेडी हो जाए। ठीक है, दैट्स व्हाट आई डिड। एंड उसके बाद 2 महीने के बाद पूरा मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, आफ्टर कंप्लीटिंग माई नोट्स, कि मुझे रिवाइज करना है, मुझे PYQs कंप्लीट करने हैं, मतलब जितने ज्यादा मैं सॉल्व कर सकती हूँ मैं करूँ। एंड तीसरा, मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, सो दैट आई नो कि व्हाट स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू अडॉप्ट इन द एक्चुअल एग्जाम। दैट्स व्हाट आई डिड। ओके, सो दैट्स हाउ आई डिड इट। एंड ये हो गया आपका बेसिकली राइट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपके एग्जाम के लिए ये होगी। अब जो दूसरी चीज मैंने बात की थी वो है राइट माइंडसेट। ओके, राइट माइंडसेट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अब देर आर सो मेनी कैंडिडेट्स आई कम अक्रॉस जो ऐसे बोलते हैं कि मैम इस एग्जाम में तो ज्यादा अटेम्प्ट, मतलब ऐसे कोई अपर लिमिट है नहीं अटेम्प्ट्स की, एज मेनी अटेम्प्ट्स एज यू गिव, यू डोंट हैव एन अपर लिमिट ऑन दैट। सो वो इसको बहुत लैक्स वे में लेते हैं, मतलब उनकी जो अप्रोच होती है वो बहुत ही लैक्स होती है, सीरियस नहीं होती। तो वो ऐसे कहते हैं जैसे इफ दे आर गिविंग देयर एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो वो ऐसे कहते हैं बस ऐसे ही दे देते हैं देखने के लिए कि एग्जाम होता क्या है, कैसे है, कैसा पेपर आता है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वो बहुत लाइटली इस चीज को लेते हैं एंड आई एम पर्सनली अगेंस्ट इट, बिकॉज मेरा मानना ये है कि इफ यू आर सीरियस अबाउट समथिंग, इफ यू आर रियली वांटिंग समथिंग, अगर आप सच में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो एंड यू आर सीरियस अबाउट इट, तो आपको अपना एक एक अटेम्प्ट यू हैव टू मेक इट काउंट, राइट। आपका आइडियली अप्रोच ये होनी चाहिए, योर माइंडसेट शुड बी टू क्लियर द एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, जितना जल्दी इस एग्जाम को क्लियर कर सको उतना अच्छा है। नो मैटर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स you have to still be very clear in your head कि you have to clear this exam at the earliest। पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऑल यू नीड इज द राइट स्ट्रैटेजी एंड द राइट माइंडसेट, दैट्स व्हाट आई से, राइट। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपने एग्जाम लेट्स से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड थर्ड, लोग कितने कितने अटेम्प्ट देते हैं। सो आप यू वुड नो दैट योरसेल्फ कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपकी एनर्जी लेवल होता है, जो आपका मोटिवेशन लेवल होता है, अगर आप उसको अपने थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट से कंपेयर करो, उसमें बहुत डिफरेंस होगा, राइट। एंड दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। आई अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चे होते हैं, दे आर वेरी मोटिवेटेड, उनको पता है उनको क्लियर करना है, दे विल डू इट, बट आप फिर भी उनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड, अगर टाइम ज्यादा हो रहा है, अगर अटेम्प्ट ज्यादा हो गए, राइट। बिकॉज माइंड उस चीज को उस तरीके से लेता है कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। इट्स वेरी नेचुरल फॉर ह्यूमंस टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। एक ही चीज को, अब लेट्स से आपने नोट्स बनाए हुए हैं, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। योर माइंड गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, इट गेट्स टायर्ड, राइट। सो इसीलिए आपका जो बेसिकली माइंडसेट होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट से ही, बिगिनिंग से ही आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ही फोकस्ड होनी चाहिए। ठीक है, लाइटली नहीं लेना है आपने, विच अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स डू। वो लाइटली लेते हैं एंड उसकी वजह से उनके अटेम्प्ट जाते जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, राइट। सो ये चीज, ऐसी गलती नहीं करनी है। जितना जल्दी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सको उतना अच्छा है आपके लिए।
ठीक है। और दूसरा, राइट माइंडसेट इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर द एग्जाम, इट्स इवन इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम टाइम में आपने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, उस चीज के लिए भी राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, राइट। इवन बिफोर यू एंटर द एग्जाम हॉल, वो स्ट्रैटेजी को डिवेलप करना, क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दैट वीडियो इन व्हिच आई हैव आस्क्ड यू दैट देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स व्हिच यू नीड टू अवॉइड इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्लियर यूजीसी नेट एग्जाम। सो वो एग्जाम टाइम में भी जो आपकी राइट माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम, right? That's something that I'm telling you from my experience, right? So this is the entire crux of this particular exam, the strategy that you need to adopt. Firstly, अपनी स्ट्रैटेजी आपको बहुत क्लियर रखनी है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इन द वेरी बिगिनिंग, राइट। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले ही स्ट्रैटेजी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, एंड यू हैव टू स्टिक टू इट। दूसरा है राइट माइंडसेट, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीजें फॉलो करते हो, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम। बट गिवन कि आप इस चीज को डिसिप्लिन्ड तरीके से फॉलो कर रहे हो, ठीक है, दोनों चीजों को डिसिप्लिन फैशन में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, राइट। So with that we come to the end of this particular video. I really hope कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले, and if you have any doubts, anything that you would like to ask, anything else, any personal queries you have, please do put that in the comment section. We would definitely love to help you out with that. And also subscribe to the channel if you do not want to miss out on any more content like this. And with that we come to the end, and I wish you all the very best for this exam.